Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. Children, welcome back once again in your social science class after your duties. Okay, children, earlier we discussed about the Turkish invasions in India in medieval period. So, children, before starting our next topic or chapter, I want to raise one question from you. What was the main reason behind these foreign invasions? As you already know, lack of unity among Indian rulers and somewhat caste system in India was the main reason for the defeat of Indian rulers. Okay, so children, let us start chapter 13, Delhi Sultanate, and let us also discuss about Muhammad Ghori and Ghazni. So children, during the late 12th century and 1173 to 1290, as we already know, India was divided into small states. छोटी छोटी states में India बटा हुआ था and there was lack of unity. ये सबसे बड़ा reason था, lack of unity among Indian rulers. It was the main reason for the defeat of Indian rulers. Under these circumstances, who took the advantage of this political disunity of Indian rulers? Muhammad Ghori. Okay, as we have already discussed about Muhammad Ghori, bache. He belonged to small state of Ghor in Afghanistan and his real name was Ghiyasuddin Muhammad. But popularly he was known as Muhammad Ghori, and he conquered Punjab, Sindh and few other states. Okay, and in 1981 he was challenged by Prithviraj Chauhan, the ruler of Delhi and Ajmer, and defeated by him. Muhammad Ghori was defeated by Prithviraj Chauhan, but somehow managed to escape to Afghanistan. But वो भागकर अफगानिस्तान चला गया and in 1192 अगले ही साल उसने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया. ओके, और उन्हें मार डाला. इन दिस वे टर्क्स कैप्चर्ड अजमेर एंड दिल्ली. इस तरह से टर्क्स ने अजमेर एंड दिल्ली को कैप्चर कर लिया. लेटर ऑन बच्चे जयचंद who gave invitation to Muhammad Ghori to fight with Prithviraj Chauhan. He was also killed in a battle in 1194. बाद में बच्चे जो जयचंद था जिसने इनविटेशन दिया था मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ने के लिए, वो भी 1194 में मारा गया. उसकी भी डेथ हो गई. फाइनली देयर वाज नो बिग किंगडम. ओके, देयर वाज नो बिग रूलर at that time. Okay, and Muhammad Ghori also returned back to Ghor with a large booty. बूटी क्या होता है बच्चे? जो वेल्थ होती है लूटी हुई, जो लूट का माल होता है. तो जो उसने इंडिया से इतनी वेल्थ गेन की थी, लूटी थी, उसे लेकर मोहम्मद गौरी रिटर्न बैक हो गया बच्चे घौर को. लेकिन उसने जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर रखी थी, उसने किसके हाथ में सौंप दी वो? सो ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज डेप्यूटी इन इंडिया. एक तरह से गवर्नर की तरह उसने किसे डेप्यूट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को. ओके, ऑन 15th March 1206 मोहम्मद गौरी वॉज किल्ड बाय खोखर शोल. सो आफ्टर हिज डेथ द कमांड ऑफ इंडियन टेरिटरी केम अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक. तो जो उसके मरने के बाद बच्चे जो भी टेरिटरी इंडियन टेरिटरी थी उसकी कमांड किसके अंडर आ गई? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वो उसको डेप्यूटी बना के गया था और वो एक तरह से गौरी का स्लेव था. ठीक है, घौरी स्लेव. सो अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट. कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट. ओके, सो ऐबक एस्टैब्लिश्ड द स्लेव डायनेस्टी. वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, दैट्स वाई जो भी उसने डायनेस्टी स्टार्ट की, दैट डायनेस्टी वॉज नोन एज स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट स्लेव डायनेस्टी. ओके, this is the pic of Qutbuddin Aibak and he ruled from 1206 to 1210 century. Okay, Qutbuddin Aibak. So children, he founded the slave dynasty as most of the rulers of this dynasty were slaves or children of slaves. The slave dynasty is also known as bache Mamluk dynasty. Okay, and this dynasty ruled over Delhi
from 1206 to 1290 century. Okay, so Qutbuddin Aibak established a strong kingdom based on military power. ठीक है, उसने इतनी बड़ी किंगडम बना दी थी बच्चे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम बना दी थी, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा आर्मी हो गई थी जो भी मोहम्मद गौरी छोड़ के गया था, और जिन जिन एरियाज़ को उसने डिफीट किया था उसकी आर्मी भी उसके अंडर ही आ गई थी. ओके, सो चिल्ड्रन, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गजनी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ याल्दोज. जो याल्दोज था वो वहाँ का रूलर बन गया था गजनी का. सो उसे किसने डिफीट किया बच्चे? कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीटेड याल्दोज एंड फ्रीड पंजाब फ्रॉम हिम. पंजाब का कुछ पार्ट भी उससे वापस ले लिया. ऐबक वॉज ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ये लाइन आपने हर क्वेश्चन में लिख देनी है, क्योंकि सारे रूलर्स जो मोस्टली थे सभी पैट्रन थे लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के. ही बिल्ट कुतुब मीनार एंड कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चे कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसको बनवाया, और एक मॉस्क्यू है मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में, उसे भी किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ने. ओके, सो ये आपने याद रखना है कि विच मॉन्यूमेंट वाज मेड बाय विच रूलर. ओके, और इसने एक और मॉस्क्यू बनवाई थी बच्चे अजमेर में, 2.5 दिन का झोंपड़ा. इसके पीछे भी बच्चे एक स्टोरी है, क्योंकि उसने 2.5 days स्पेंड किए थे यहाँ अजमेर में, और उसी प्लेस पे फिर उसने वो मॉस्क्यू बना दी एंड नेम्ड इट 2.5 दिन का झोंपड़ा. ओके, और उसके कोर्ट में जो लिटरेरी पर्सनालिटीज़ थी, राइटर्स थे, पोइट थे, ही हैड लिटरेरी जेम्स लाइक हसन आज़मी एंड मुबारक शाह. हसन आज़मी एंड मुबारक शाह जो थे उसके कोर्ट में लिटरेरी जेम्स थे. ओके, बट ही वॉज डाइड इन 1210 सेंचुरी. बेटे 1210 सेंचुरी में उसकी डेथ हो गई. ओके, एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन आराम शाह. उसकी डेथ बहुत जल्दी हो गई, तो उसके बेटे को राजा बनाया गया, आराम शाह को, बट नोबल्स ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. दिस मीन्स कि वो इतना एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, लोगों ने उसे पसंद नहीं किया. सो इल्तुतमिश, द सन इन लॉ ऑफ ऐबक एंड द सूबेदार ऑफ बदान वॉज इन्वाइटेड टू रूल. फिर किसे बुलाया गया बच्चे? इल्तुतमिश को, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था, और उस टाइम वो सूबेदार ऑफ बदान था. उसे इनवाइट किया गया कि आप आके रूल करो दिल्ली पे. सो ही डिफीटेड आराम शाह एंड बिकेम द सुल्तान. तो उसने आराम शाह को हराया और वो सुल्तान बना. सो दैट्स अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका बहुत ही शॉर्ट पीरियड था, बट ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी. ओके, एंड कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक. तो ये आपने बिल्कुल माइंड में रखना है. ओके, देन देयर कम्स सेकंड रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, इल्तुतमिश. ही रूल्ड फ्रॉम 1210 to 1236 century. Okay, he was Iltutmish. His full name was Shamshuddin Iltutmish, and his rule extended from 1210 to 1236 century. Okay, he made Delhi his capital. उसने बेटे दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया. And at the time of becoming sultan, he was confronted with many problems. जैसे वो सुल्तान बना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, बट उसने उन्हें फेस किया बहादुरी के साथ. ओके, he defeated his main rivals याल्दोज ऑफ गजनी. So बच्चे keep in mind याल्दोज of Ghazni. He also fought with कुतुबुद्दीन ऐबक and also he fought with इल्तुतमिश. तो याल्दोज दोनों जगह पे आता है. So Yaldos came at both places. And कुबेका of Sindh. तो इल्तुतमिश की किसके साथ लड़ाई हुई थी बच्चे? याल्दोज ऑफ गजनी एंड कुबेका ऑफ सिंध एंड मुल्तान. इल्तुतमिश बहुत ही ज़्यादा एबल था बच्चे, एंड श्रीउड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर. चालाक था, कनिंग था. श्रीउड मीन्स चालाक. ही लिबरेटेड द टर्किश एम्पायर
from Ghazni and other foreign powers and consolidated it effectively. उसने टर्किश एम्पायर्स को फॉरेन इन्वेडर से बचाया और बहुत ही सुरक्षित रखा, अच्छी तरह से रखा. ओके, he diplomatically saved himself and Delhi from the wrath of Mongol conqueror Genghis Khan by not giving shelter to Shah of Khwarizm. उसने बहुत ही चालाकी से, बच्चे डिप्लोमेटिकली होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीज़न लेते हो डिप्लोमेट होता है, ना कभी एक का पक्ष लेना ना दूसरे का, और दोनों को ही खुश कर देना. उसने मंगोल क्वैंकर चंगेज़ खान को खुश कर दिया क्योंकि उसने उसके जो दुश्मन को, राइवल को शेल्टर नहीं दिया दिल्ली में, जो कि कौन था, शाह ऑफ ख्वारिज़म. ये कह के उसे टाल दिया कि दिल्ली का क्लाइमेट बहुत गर्म है, ये आपको सूट नहीं करेगा, अदरवाइज़ तो आप यहाँ पे रह सकते थे. तो ना उसने चंगेज़ खान को नाराज़ किया ना शाह को नाराज़ किया. ओके, और मंगोल चंगेज़ खान के रैथ मीन्स गुस्से से भी बचा लिया दिल्ली को. ओके, सो चिल्ड्रन, इल्तुतमिश मेड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन हिज होल्ड ऑन दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के ऊपर पकड़ बनाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए. उसने एक 40 टर्किश नोबल्स का एक ग्रुप बनाया, दैट इज़ नोन एज चालिहा. उसे चालिहा कहा जाता है. ओके, चालिहा जो थे 40 नोबल्स, दे एडवाइज्ड हिम टू रन एडमिनिस्ट्रेशन. राजकाज चलाने में वो उसकी मदद करते थे. ओके, ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू मैनी इक्ताज. उसने अपने एम्पायर को इक्ताज में बांट दिया, समझ लो डिस्ट्रिक्ट्स में बांट लिया. प्रेजेंट डे, आजकल के प्रेजेंट डे में जैसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, सेम लाइक दैट उसने इक्ताज में बांट दी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ताकि राजकाज का काम अच्छी तरह चलाया जा सके. ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स टंका एंड कॉपर कॉइन जीतल. उसने सिल्वर एंड कॉपर कॉइन स्टार्ट किए बच्चे, टंका एंड जीतल. सो लिसन केयरफुली, इनसे वन वर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं कि सिल्वर कॉइन कौन सा था, टंका एंड कॉपर कॉइन जीतल. ओके, सो इल्तुतमिश वाज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. ही took care of art and literature. Minhas-uz-Siraj was the famous writer of his court. Literary persons like Rouhani and Usami also graced his court. बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे बच्चे, रूहानी एंड उसामी, वो भी उसी के कोर्ट का पार्ट थे. ओके, इल्तुतमिश वाज अ स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम. स्टॉन्च मीन्स कट्टर सुन्नी मुस्लिम था बच्चे. इस्लाम रिलीजन है, इसमें ये भी 2 सेक्ट्स में बटा है मेनली, सुन्नी एंड शियाज. तो ही बिलोंग टू सुन्नी सेक्ट. ओके, सो ही ट्रीटेड शियाज एंड हिंदूज वेरी बैडली. सो ही वॉज नॉट रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन, और वो शियाज और हिंदूज को बहुत बैडली ट्रीट करता था बच्चे. ओके, ही वॉज स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम. ओके, look at here the coins of Delhi Sultanate. okay, कुछ इसमें से जीतल भी हो सकते हैं, कुछ टंका भी हो सकते हैं. ओके, सो बच्चे आफ्टर हिज डेथ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि कोई रूल नहीं था इनहेरिटेंस का. उसके सक्सेसर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इल्तुतमिश को अपने सन्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था. दे वर नॉट एबल, वो बहुत ज़्यादा एबल नहीं थे. So Iltutmish had no faith in the capacity of his sons to rule. Okay, so he nominated his daughter Razia, जो बहुत ही ज़्यादा एबल थी, okay, as his successor. तो उसने अपनी बेटी रज़िया को नॉमिनेट किया था अपनी सक्सेसर के लिए. अपने she was an able and strong administrator. Okay, so after Iltutmish, Razia Sultan became the ruler. Okay, she ruled from 1236 to 40 century. कुछ लोगों का तो यही मानना है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट थिंग्स दी हुई हैं, जैसे कि उसने जस्ट ओनली फॉर 1 year रूल किया था, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक शी रूल्ड फॉर 4 years. ओके, दिस इज द पिक ऑफ रज़िया सुल्तान एंड शी रूल्ड फ्रॉम 1236 to 1240 century. ओके, बट रज़िया बच्चे एकदम नहीं बनी थी सुल्तान. आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, जो नोबल्स थे उन्हें एक लेडी का सुल्तान बनना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को, जो कि बड़ा बेटा था बच्चे इल्तुतमिश का, उसे डिक्लेयर कर दिया बीइंग अ सुल्तान. ओके, बट सुल्तान बनने के
7 महीनों के बाद ही उसका मर्डर हो गया एंड लेटर रज़िया बिकेम सुल्तान। और कोई एबल एडमिनिस्ट्रेटर ना होने के कारण नोबल्स को मजबूरी में मारना ही पड़ा। ओके। रज़िया क्रश्ड हर ओपोनेंट्स, जो उसके ओपोनेंट्स थे, जो नहीं चाहते थे कि वो सुल्तान बने, रज़िया ने उन्हें क्रश कर दिया। थोड़े टाइम के लिए ही उसने रूल किया, बट उसने अपने आप को कंसीडर्ड कर दिया एक्सेप्शनली कैपेबल रूलर के रूप में। ओके। एक्सेप्शनली मीन्स बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थी वो राजकाज संभालने के लिए। शी यूज़ टू ड्रेसअप लाइक अ मैन, मैन की तरह वो ड्रेसअप करती थी बच्चे। वाइल गोइंग ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस, इवन उसने लड़ाइयाँ भी लड़ी, मिलिट्री एक्सपीडिशंस में भी वो जाती थी। रज़िया कुड रूल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स के लिए ही वो रूल कर पाई, क्योंकि उसके ओपोनेंट्स, उसके राइवल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। शी वॉज किल्ड इन अ बैटल इन 1240 सेंचुरी। ओके। बच्चे, आफ्टर रज़िया बहराम शाह रूल्ड फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम 1240 to 1242 सेंचुरी। ठीक है। नोबल्स ने उसे सुल्तान बनाया, बट ही वॉज ऑल्सो किल्ड इन 1242 सेंचुरी, उसे भी मार डाला गया बच्चे। सो चिल्ड्रन, आफ्टर द डेथ ऑफ बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह ऑल्सो रूल्ड फ्रॉम 1242 सेंचुरी to 1246 सेंचुरी। ओके। जो अलाउद्दीन मसूद शाह था उसे सुल्तान बनाया गया कुछ सालों के लिए। यहाँ पे डेट थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, यू कैन करेक्ट इट, यहाँ पे 46 आएगा। ओके। 1242 सेंचुरी to 1246 सेंचुरी। ओके। देन आफ्टर मसूद, नसीरुद्दीन महमूद शाह बिकेम सुल्तान, और उसने थोड़ी स्टेबिलिटी दी बेटे डायनेस्टी को। ही रूल्ड फ्रॉम 1246 to 1266 सेंचुरी। ओके। सो इन द ईयर 1246, जो छोटा बेटा था इल्तुतमिश का बच्चे, द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद बिकेम द सुल्तान फॉर 20 ईयर्स। नियर अबाउट उसने 20 ईयर्स तक रूल किया। और जो गयासुद्दीन बलबन जो था वो उसका प्राइम मिनिस्टर था। ओके। एज वेल एज द एक्चुअल रूलर, क्योंकि जो सन थे बच्चे इल्तुतमिश के, वो कोई भी एबल तो नहीं थे, रज़िया सुल्तान की डेथ हो गई थी। सो जो बलबन था उसका प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली वही रूल कर रहा था। ओके। सो आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन महमूद इन 1266, नसीरुद्दीन महमूद की भी डेथ हो गई बेटे 1266 सेंचुरी में। दैन बलबन बिकेम द सुल्तान एज नसीरुद्दीन मोहम्मद डिडंट हैव एनी सन, क्योंकि नसीरुद्दीन मोहम्मद के कोई बेटा नहीं था, सो बलबन बिकेम द सुल्तान। ओके। यस, हियर इज द पिक ऑफ नसीरुद्दीन महमूद। ओके। एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1246 to 1266 century. Okay. Then children, after Nasruddin Mahmud, Ghiyasuddin Balban was made Sultan. Okay. क्योंकि नसरुद्दीन महमूद के कोई अपना बेटा नहीं था, एज आई हैव टोल्ड यू, जो उसका प्राइम मिनिस्टर था बलबन, ही बिकेम सुल्तान। ओके। एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1266 to 1286. ओके। बलबन वॉज स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर, बहुत ही अच्छा रूलर था, बहुत स्ट्रॉन्ग था बच्चे, और योग्य भी था। ही ऑल्सो सप्रेस्ड ऑल ऑपोजिशन, जो भी उसके खिलाफ खड़े हो गए उनको उसने सप्रेस कर दिया। एंड क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ ओबीडियंस एंड पैट्रियटिज्म, उसने एक ऐसा माहौल वहाँ पे बना दिया जिसमें सभी आज्ञा का पालन करते थे। ओबीडियंस मीन्स आज्ञा का पालन करना, एंड पैट्रियटिज्म मीन्स देशभक्ति का, और सुल्तान के लिए अपना वफादारी का। ओके। ऐसा उसने एक एटमॉस्फेयर रेडी कर दिया था वहाँ पर। ओके। बलबन एंडेड द पावर ऑफ द ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स, बलबन ने एंड कर दिया 40 टर्किश नोबल्स की पावर का। उसने अपने अकॉर्डिंगली रूल किया, जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। नोबल्स के एडवाइस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना वो उसने बंद कर दिया था। ओके। और अपनी पोजीशन को उसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। ही वॉज ए सुल्तान हु बिलीव्ड इन कंप्लीट जस्टिस, वो पूरे न्याय में विश्वास करता था बच्चे।
He did not spare any wrongdoer, whether common man or a noble. और उसे फ्लैटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो किसी को भी नहीं स्पेयर करता था अगर कोई गलत काम करता था, चाहे वो एक आम आदमी हो, कॉमन मैन हो, या फिर कोई कोर्टियर हो या नोबल हो. ओके. हिज दरबार वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन था उसका जो दरबार था. नोबडी कुड टॉक और लाफ. कोई भी हंस नहीं सकता था और बात नहीं कर सकता था विदाउट हिज परमिशन, और एल्स फेस्ड पनिशमेंट. अगर कोई ऐसा करता था तो उसे पनिशमेंट मिलती थी. ओके. ही एनहेंस्ड द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द सुल्तान. उसने सुल्तान की पावर को और बढ़ाया. ओके. ही सेफगार्डेड हिज फ्रंटियर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग मैनी फोर्ट्स एंड पोस्टिंग हिज बेस्ट गार्ड्स देयर. उसने कई फोर्ट्स बनाए, किले बनाए बच्चे, और अपने बेस्ट गार्ड्स को वहाँ पे पोस्ट किया. ओके. देन बलबन डाइड इन 1286 में बलबन की डेथ हो गई बच्चे. आफ्टर हिज डेथ अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन प्रिवेल्ड फॉर सम टाइम. बहुत ही कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन हो गई थी. इन 1290 सेंचुरी Jalaluddin overthrew the weak and incapable successor of Balban and captured the throne. So बच्चे कोई एबल सक्सेसर नहीं था बलबन का. सो उसकी डेथ के 3-4 साल बाद बच्चे जलालुद्दीन खिलजी overthrew his incapable successor. Okay, and captured the throne. और सिंहासन को कैप्चर कर लिया. Okay, and in that way the Mamluk or slave dynasty ended. And a new dynasty of Khaljis started by Jalaluddin Khalji. Okay, so that's all in slave dynasty. So revise your topic, children. This is the timeline of slave dynasty. Okay, founded by Qutbuddin Aibak and ended with the death of Balban. Okay, so आपको टाइमलाइन ज़रूर पता होनी चाहिए बच्चे किसी भी डायनेस्टी की. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी. ओके, तो इनको आप हमेशा माइंड में रखेंगे. ही आर ऑल्सो गिवन द स्लेव डायनेस्टी रूलर्स, जो थोड़े टाइम के लिए भी सुल्तान बने थे, उनका नेम भी यहाँ पे दिया है. ओके, कीप दीज नेम्स इन योर माइंड. ऑल्सो हैव अ लुक एट द मोनूमेंट्स मेड बाय दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी. कुतुब मीनार, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था बच्चे इसे. ओके, एंड दिस इज़ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, अगेन उसी ने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने. सो बाकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट रूलर्स ने डिफरेंट पीरियड्स में बनाए हैं. ओके, आई विल टेल about these monuments in the later videos. Okay, so that's all in today's topic. Revise your topic. Okay.